Welcome back again to the channel Classes with Aarti. In the previous class, I gave you homework of chapter negative sentences. Hope you all have done it. Okay, let us discuss it now. Your homework was convert the following sentences into negative sentences. First is Sia has gone to the market. It is related to the second concept of the chapter in which I told you if the verb is made up of two or more words, we always add not after the helping verb. So in this sentence, the helping verb is has, and after has we write not. Sia has not gone to the market, and at the end we put full stop and the first letter is capital. Second is Jyoti is happy with her new friends. This sentence is related to the first concept in which I told you if the verb is made of single word, then not is used only after the helping verb or the first word, that is. So Jyoti is not happy with her friends. First letter is capital and at the end we put full stop. Third is play in the garden. प्ले इन द गार्डन, इट इज़ द ऑर्डर, कमांड दी जा रही है कि गार्डन में प्ले करना है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और टू मेक इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव वी पुट डोंट in the beginning of the sentence. So don't play in the garden and we put full stop at the end. And the last sentence of your homework is read slowly. It is also an imperative sentence. To make it negative, we also put don't in the beginning of the sentence. You can write do not also or you write don't also. Both are correct. Before starting today's topic, I want to tell you something which is very important, that is parts of speech. There are 8 parts of speech in grammar. Number 1, noun. Number 2, adjective. Number 3, pronoun. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. And number 8, interjections. Students, sentences are made up of words. जो sentences हैं वो words से बनते हैं and the words belong to different groups, और जो words हैं वो अलग अलग ग्रुप से belong करते हैं. उन्हीं ग्रुप्स को हम parts of speech कहते हैं. There are 8 parts of speech. We will learn it step by step. In today's video we will learn noun in concept. Noun concept we will learn in detail. Students, we will discuss the first part of a speech, that is nouns. What are nouns? The names of persons, animals, things and places are called nouns. किसी भी person का name, किसी animal का name, किसी thing का name या किसी place का name, सब noun हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, हर चीज़ को नेम मिला हुआ है, लाइक बॉटल, टेबल, चेयर, पेन, अलमीरा, मिरर, मैट, बेड, बेडशीट, ये सब के नेम्स ही तो हैं. तो ये सब क्या हैं? नाउन्स हैं. तो चाहे किसी पर्सन का नेम हो, चाहे किसी एनिमल का नेम हो, चाहे किसी थिंग का नेम हो, चाहे किसी प्लेस का नेम हो, सब नाउन्स ही हैं. सो लुक एट द पिक्चर्स स्टूडेंट. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्कूल. स्कूल किसी प्लेस का नेम है, किसी जगह का नेम है, तो ये भी नाउन है. सेकेंड पिक्चर इज टीचर. टीचर क्या है? किसी पर्सन का नेम है, टीचर है. थर्ड इज बोर्ड. बोर्ड क्या है? कोई थिंग है, किसी थिंग का नेम है. ओके. एंड द फोर्थ इज डॉग. डॉग क्या है? किसी एनिमल का नेम है. तो इन पिक्चर्स को देख के ही हमें पता लग रहा है कि नाउन्स क्या हैं. किसी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी प्लेस का नेम या किसी थिंग का नेम, ऑल आर नाउन्स. हर चीज को नेम मिला हुआ है और सभी नाउन्स होते हैं. लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू आवर चैप्टर नाउन्स. फर्स्ट इज अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने आपको बताया कि नाउन किसी का भी नेम हो सकता है. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सबको नेम मिला हुआ है. ऑल आर nouns. So nouns are names of the persons, places, animals and things. Let us do the exercise. फर्स्ट इज मदर बेक्ड केक्स एंड बिस्किट्स. कि मदर ने केक्स और बिस्किट्स बेक किए. अब जो बेक वर्ड है वो वर्ब है, वो एक्शन वर्ड है. हमने एक्शन वर्ड क्या होता है? जब कोई काम कुछ कर रहा है.
तो इसमें नाउन्स कौन है? मदर, मदर नाउन है क्योंकि वो किसी का नेम है। केक्स किसी थिंग का नेम है, मदर किसी पर्सन का नेम है, बिस्किट्स भी किसी थिंग का नेम है, राइट। तो बेक्ड जो है वो तो वर्ब है, तो इस सेंटेंस में मदर, केक्स और बिस्किट्स जो हैं ये तीनों ही नाउन्स हैं। सेकंड इज गिव मी अ कप ऑफ टी। अब इसमें भी देखो, इसमें भी हमने ये देखना है कि कौन सा नाउन है। नाउन क्या है? किसी का भी नेम। अब कप किसी थिंग का नेम है, टी भी किसी चीज का नाम है, किसी थिंग का नेम है, तो कप और टी ये दोनों ही क्या हैं? नाउन्स हैं। थर्ड इज वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, कि हमें प्लांट से मेडिसिन मिलती है। मेडिसिन इज ऑल्सो अ थिंग। प्लांट्स क्या है? ये भी थिंग है। प्लांट भी तो है ना, कुछ किसी का नेम है, मेडिसिन भी किसी का नेम है। वी तो हम ले नहीं सकते, गेट हमारा वर्ब है। सो मेडिसिन्स और प्लांट्स क्या है इस सेंटेंस में? नाउन्स हैं। फोर्थ इज आई लेफ्ट माई पेंसिल इन स्कूल, कि मेरी पेंसिल जो है वो स्कूल में रह गई है। तो अब इसमें भी हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में पेंसिल और स्कूल ये दोनों क्या हैं? नाउन्स हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने पे हमें यही पता लगा कि व्हाट आर नाउन्स, किसी का भी नेम जो है वो नाउन है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई थिंग हो, हर किसी का नेम होता ही है। हम पेन से लिखते हैं, पेन भी तो नेम है किसी चीज़ का, पेन भी नाउन है, मार्कर भी नाउन है, बोर्ड भी नाउन है, अलमीरा भी नाउन है, टेबल, चेयर, स्काई, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स हैं जो, वो भी नाउन है। हर तरह की चीज़ जो है, हर किसी का नेम है, तो वो नाउन के अंडर ही आता है। सेकेंड एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट नाउन्स। अब हमने इसमें करेक्ट नाउन को टिक करना है। फर्स्ट इज आई कट हेयर, मैं हेयर कट करता हूं। तो हेयर कौन कट करता है? बार्बर या स्वीपर? एज वी ऑल नो दैट कि जो बार्बर है वही हेयर कट करता है, तो टिक करेक्ट नाउन इज बार्बर। सेकेंड इज आई फ्लाई एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स कौन फ्लाई करता है? एस्ट्रोनॉट या पायलट? पायलट, पायलट फ्लाई द एरोप्लेन्स। थर्ड इज आई कैच फिश, मैं फिश पकड़ता हूं। तो फिश कौन पकड़ता है? फिशरमैन या फार्मर? फिशरमैन जो है वो फिश को पकड़ता है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई एक्ट, एक्ट कौन करता है? एक्टर या टेलर? एक्टर करता है। सो इन एक्सरसाइजेस को करके हमें यही पता लगा स्टूडेंट्स कि नाउन्स क्या हैं? किसी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी थिंग का नेम, राइट, किसी प्लेस का नेम। जहां पर भी किसी का नेम है वो नाउन ही है। थर्ड एक्सरसाइज इज सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अंडरलाइन द नाउन्स, टिक द करेक्ट नाउन्स। अभी तक हम कर रहे थे कि सिर्फ हमने नाउन्स देखना है। नाउ स्टूडेंट्स काइंडली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स। अब हमने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो नाउन्स नहीं हैं, यानी कि वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट इज सिंग, बॉय, गर्ल, स्कूल। सिंग होता है गाना गाना, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, स्कूल। तो बॉय गर्ल दोनों जो है वो किसी पर्सन के नेम है, और स्कूल जो है वो किसी प्लेस का नेम है। पर अगर हम इस वर्ड को पढ़ें सिंग, ये क्या है? हम गाना गा रहे हैं, तो सिंग आपका क्या है? वर्ब है। तो अब हमने इसमें क्या करना है? जो नाउन नहीं है उसको सर्कल करना है। तो सिंग जो है वो नाउन नहीं है। सेकंड इज बेबी, टॉक, शीप, मून। सो बेबी, शीप, मून ये सब क्या है? किसी के नेम हैं, लेकिन टॉकिंग करना तो किसी का नेम नहीं है। ये तो हमारा एक्शन वर्ड है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, राइट। थर्ड, बुक्स, रीड, लाइब्रेरी, पिक्चर्स।
बुक्स, लाइब्रेरी, पिक्चर्स, ये भी किसी के नाम है। देखो बुक्स जो है वो किसी थिंग का नेम है, लाइब्रेरी किसी प्लेस का नेम है, पिक्चर्स भी किसी थिंग का नेम है। लेकिन रीड करना क्या है स्टूडेंट्स, हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं, वो हमारा एक्शन वर्ड है, यानी कि वो वर्ब है या डूइंग वर्ड है। तो हम इसमें किसको सर्कल करेंगे, रीड को। फोर्थ इज जिराफ, टॉल, एलिफेंट, ईयर्स। इस सेंटेंस, इनमें वर्ड्स में भी देखिए आप, जिराफ क्या है, एनिमल, एलिफेंट क्या है, एनिमल, ईयर्स क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी है, कोई थिंग है। बट टॉल क्या है बच्चे, टॉल जो है वो हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो उसका एडजेक्टिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है एक्सेप्ट नाउन, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये किया कि सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स। फिफ्थ इज शीप, रैबिट, ग्रास, ग्रेज। अब शीप हो गया, रैबिट हो गया, दे आर द नेम ऑफ द एनिमल्स। और ग्रास क्या है, ये किसी थिंग का नेम है, खाने वाली चीज है, इट इज इटन बाय एनिमल्स। सो ग्रेजिंग करना क्या है, जब काउज, हम सेंटेंस बोलते हैं ना, काउज ग्रेज इन द फील्ड, जब वो खा रहे होते हैं, जब एनिमल्स कुछ खाते हैं हम उनको ग्रेज बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग कुछ खाते हैं उसको हम ईट बोलते हैं। एनिमल्स जो है अगर वो अपना मील ले रहे हैं, इट इज नोन एज ग्रेज। तो ग्रेजिंग करना भी क्या है, आपका एक्शन वर्ड है। एंड द सिक्स्थ इज पेन्स, हैप्पीली, पेंसिल, बैग। पेन्स, पेंसिल, बैग तीनों ही थिंग्स हैं, बट हैप्पीली क्या है, खुशी से कुछ करना, तो ये भी आपका क्या है, ये नाउन नहीं है। हैप्पीली इज नॉट अ नाउन। पेन्स, पेंसिल, बैग तीनों थिंग्स के नेम हैं। सो जो आपका हैप्पीली है वो आपका एडवर्ब है। स्टूडेंट्स बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वी विल डिस्कस लेटर, पहले हमें नाउन्स क्लियर करने हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने सर्कल किए हैं, दे आर नॉट नाउन्स, ये नाउन्स नहीं हैं। Students, are you ready for a homework? Okay. First part of your homework is underline the nouns in the following sentences. First is, my favorite fruit is mango. Second, Jyoti bought 2 books. Third, the Ganges is a sacred river. In this question, you will underline the nouns. Okay. Second is, circle the words that are not nouns. First, oranges, apples, sweet, grapes. Second is short, air, water, cloud, river, rain. Third is hair, eyes, cry, nail. In this question, you will circle the words that are not nouns. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।